तं येन भूते स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So we are continuing with text 34. Someone can read Abhay Govind Prabhu. 34 text. So Brahmaji from he gave up his previous body, which was contaminated by lust towards his own daughter. So he gave that up and then continued his creation. Let's see what happens now. Text 34. Once upon a time, when Brahma was thinking of how to create the worlds, as in the past millennium, the four Vedas, which contain all varieties of knowledge, were manifested from his four mouths. It's very important for all of us to understand the etiquette and of not judging a great Vaishnava. So Prabhupada, I will read what Prabhupada says. As a fire can consume anything and everything without being contaminated, so by the grace of the Lord, the fire of Brahma's greatness consumed his desire for the sinful act of sex with his daughter. Mane, that desire was consumed by the fire of his greatness, fire of his devotion. Okay? By grace of Krishna. So when powerful personalities like Brahmaji, when they do something abominable, we should not judge the person. We should rather just become cautious of our own psychic activities, psychological ups and downs, that how crazy my mind is. Yesterday, Keshav Nimai Prabhu was sharing one quote. If I don't listen to my mind, mind will go crazy. But if I listen to my mind, I will go crazy. I think he's quoting from Chaitanya Charan Prabhu. So we have to be careful about our own devotional practice. Prabhupada mentions that Lord is always ready to forgive his devotee if by chance he falls down from noble path of devotional service. बाई चांस एक इंसिडेंटल वो था, उसके लिए लाइफ लॉन्ग जज मत करो ब्रह्मा जी को कि फिर तो हम ऑफेंस के भागी हो जाएंगे. ओके, इवन इंद्र ने किए हुए ऑफेंस के लिए हम इंद्र को जज नहीं कर सकते. वी शुड बी केयरफुल ऑफ द इंद्र मेंटेलिटी बट नॉट बिकम इट इज रेनिंग इंद्र. We are saying don't judge Indra, maybe Indra is happy. आपके कपड़े तो नहीं सूख रहे ना बाहर. Anyway, so we should not judge any great personality, even if he does any abominable act occasionally, circumstantially. But we should be beware of such tendencies might arise in us. When इंद्र तो पूरे जगत, 3 जगत को संभाल रहे हैं, 2 जगत को कम से कम, स्वर्ग और पृथ्वी, और हम क्या संभाल रहे हैं. फिर भी हम कभी कभी इतना प्राउड हो जाते हैं कि मतलब एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबली. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि इफ
this can happen to Indra, what to speak of the tiny me. मुझे तो माया कैसे भी खिलवाड़ कर सकती है मेरे साथ, लेकिन how strongly I need to take shelter of Krishna. It was never expected that such a great personality like Brahma would ever think of sex indulgence with his daughter. The example shown by Brahma only suggests that the power of material nature is so strong that it can act upon everyone, even Brahma. ये बता रहे हैं. So never take risk. We can never take risk. At the same time, never judge a great devotee if he by mistake falls. Even great devotee from the point of view of the post he is holding. Means, मान लो, I will give example without mentioning any name. Like few years back, one great devotee was caught in something child related abuse, and so it's between them and Krishna. We cannot do prajalpa about it and destroy our spiritual life. Okay, that devotee might have done amazing service to Prabhupada, and because of some mistake, because we are in material world, Maya is always inside and outside of us. Just like Krishna is inside and outside, Maya is also inside and outside of us. So we don't condone this activity, we don't support it, but we don't talk about it. Getting the point? And those who are detrimental to our devotional life. We should see only the service, और जो पनिश करने वाले हैं देयर सर्विस इज टू पनिश. समझ रहे हैं ना? और हमारा सर्विस इज नॉट टू जज. इज दिस डज दिस मेक सेंस? ओके, बिकॉज later on that news was on ISKCON media and everything. Yeah, for awareness and everything, एक बार पढ़ लिया और just okay, this has happened, बस let the chapter end there. Huh? We should be careful, that we should be careful, yes. We should be careful while dealing with children, like, something like that. So, so the power of, so Krishna is, of course, and as far as our situation is concerned, we cannot take undue advantage of Krishna's forgiveness also. हम ऐसा भी नहीं सोच सकते अच्छा मैं भी ऐसे ही कुछ करूंगा और लोगों को भी डिवोटीज को भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए. वो बहुत ही डिमोनिक है, वो अदर साइड इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. हाँ, सेवंथ ऑफेंस हो जाएगा उससे. एग्जैक्टली. सो द थिंग इज वी द पॉइंट आई वांटेड टू मेक वाज हाँ, that apijit suduracharo bhajate mam ananya bhag sadhureva samantavya samyak vyavasita hisa. For others we give benefit of doubt, and if they continue sinning or making mistake again and again and again, then we respect from the distance. We don't associate much with them. Okay. And of course some acharyas are lenient about this verse, some are very strict about this verse. How? Okay. So Vishwanath Sri Thakur, he is very lenient about this verse. He says that yes, like even if a devotee is found in associating with others' wives, and what else? That guru's wife is actually Karmi guru's wife. Okay. Otherwise it is Guru Aparadh. Okay. What else? And parahimsa, violence and other things. Still you should consider him sadhu,
बिकॉज सम्यक व्यवस्थित है. हाँ, यहाँ पे लीनियंट नहीं है वो. सम्यक व्यवस्थित के डेफिनेशन में चक्रवर्तीपाद इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट. सम्यक व्यवस्थित का मतलब क्या करते हैं मालूम है चक्रवर्तीपाद? मीन्स इज डिटरमिंड, ही इज सेइंग बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस इंप्रेशंस आई एम स्टिल इन सिंफुल लाइफ, बट I vow upon my life that if I go to hell, I don't care because of my sins. I will keep continuing to serve Krishna only and nobody else. ये डिटर्मिनेशन है क्या उसका? ये तो बड़ा कंडीशन डाला है. और भक्ति छोड़ के मुझे और कोई नहीं चाहिए, कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए, और मैं हेल में भी चला जाऊंगा तो भी कृष्ण की भक्ति करूंगा. ये डिटर्मिनेशन वाले को सम्यक व्यवस्थित हो हिसाब है. ओके, तो चक्रवर्ती बात सम्यक व्यवस्थिता के बारे में लीनियंट नहीं है, साधुरेव मंतव्य के बारे में लीनियंट है, और अपिचेत सुदूराचार्यों के प्रति लीनियंट है. ओके, मध्वाचार्य थोड़ा स्ट्रिक्ट है इसके बारे में, बोलते हैं कि सुदूराचार है तो वो सम्यक व्यवस्थित तो हो ही नहीं सकता. सो दिस अप्लाइज टू वेरी ओकेजनल फॉल्स, वेरी ओकेजनल फॉल्स, ऐसा वो बोलते हैं. और बाकी सुदूराचार है तो क्या बोलते हैं, हाई लेवल का साधु नहीं है वो. जस्ट बिकॉज उसने सम्यक व्यवस्थिता किया है इसलिए उसको साधु बोलेंगे हम. ये लेवल का थोड़ा कॉन्जर्वेटिव टाइप वो है. इवन रामानुजाचार्य का भी थोड़ा कॉन्जर्वेटिव है. वो बोलते हैं कि सम्यक अपिचेत सुदूराचारो माने एटिकेट के संबंध में सुदूराचार, नॉट कि पाप कर रहे हैं, मतलब नाक में उंगली डाल रहे लेकिन हाथ नहीं धो रहे हैं, वो उसको सुदूराचार बोल रहे हो. समझ गए? नाक में हाथ लग गया तो हाथ नहीं धो रहे हैं, या बाहर से आए और पैर नहीं धो रहे हैं, तो एटिकेट वाला सुदूराचार बोल रहे हैं उसको. माने ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको सुदूराचार बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी साधुरेव समंतव्य ऐसा बोल रहे. यू शुड फॉरगिव हिज एक्सटर्नल बिहेवियर. तो ये सेंस में रामानुजाचार्य लेते हैं उसको. समझ रहे? मतलब पाप के स्तर पर लेके नहीं जाते उसको. सुदूराचार माने किसी की हिंसा, किसी परदारागमन, वो नहीं बोल रहे. हाँ, सुदूराचार माने उनका सुदूराचार माने जैसे जैसे हमारे राधे श्याम प्रभु महाराज को क्लास में बोले, महाराज आई फील सो डिस्ट्रैक्टेड while chanting. So Maharaj asked, what thoughts come to you? So he said, earlier I used to chant many Vedic mantras. So they start ringing in my ears when I chant Hare Krishna. That is my distraction, he said. So Maharaj said, very sattvic distraction you have. Because if you say our distraction may be something grossly lusty and grossly abominable. इनके डिस्ट्रैक्शन है कि कोई वैदिक मंत्र, ओम गणानां त्वां गणपतिं हवामहे, अरे ये डिस्ट्रैक्शन है. हरे कृष्ण 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 हरे. तो पुराने वैदिक मंत्र मुझे सताते हैं बोलते. तो वैसे ही रामानुजाचार्य बोल रहे हैं सुदूराचार माने ऐसे पर्सनल हाइजीन का परफेक्टली ख्याल ना रखना, एटसेट्रा एटसेट्रा. और बोलने चलने में भी बहुत ही शुद्धता नहीं होना, उसको सुदूराचार बोल रहे हो. फिर भी साधु मानना चाहिए उनको, ऐसा बोल रहे. ठीक है, क्योंकि भक्ति ही उनको आगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फिर वो सारी धर्म ठीक से फॉलो करेगा. ओके, सो वी हैव रेंज ऑफ लीनियंसी टू conservative, and we accept all आचार्य's opinion and come to the point. तो रामानुजाचार्य भी सही है, चक्रवर्तीपाद भी सही है. ओके, इसका मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें स्क्रीन पर. Yeah, now it is good. Or maybe little, yeah, not on the screen. इसका भी थोड़ा सोचिए, मालूम है इसका चेंज क्यों नहीं हो रहा है. थोड़ा सा हल्का सा, बस बस परफेक्ट हो गया हो गया.
ठीक है, नहीं हो गया, ये तो हो गया। हरे कृष्ण। वो मेसी लग रहा है, ऐसा 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 ऐसा, वो मैंने किया था परसों। एनीवे, ऑलराइट, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट ऑन स्क्रीन डजंट मीन इट इज नॉट देयर। मैं उनको बोल रहा हूँ जूम पे, बट फॉर योर दिस, एनीवे। व्हाट वाज आई सेइंग? अपिचिरे सुदुराचारो। हाँ, चला था, फैन चला था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है उतना। हाँ, दोनों दोनों चला दो, चलेगा। हरे कृष्ण। चलने दो, चलने दो। ओके। हाँ, मुझे 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 कैसे understanding, but the thing is, we we give respect, and at the same time we keep distance, keep distance. अभी रूप गोस्वामी भाव स्तर वालों के भी कभी कभी इडियोसिंक्रेसीज दिखते हैं। स्वभाव दुष्टे स्वभाव जनितेर पपुशिष्य दोषित, उसको साधु रे वसो अपिचित सुदुराचार से कंपेयर मत करना। गेट इन द पॉइंट? ये वाला सम्यक व्यवस्थित हिस्सा माने दृढ़ श्रद्धा वाला है, लेकिन भाव स्तर वाला बहुत एडवांस्ड है। ओके, तो दोनों श्लोक एक लेवल पे नहीं है। ये बस समझना, एक सटल पॉइंट है। ओके, then uh, then let's see what else he did. You can read till 38. The four kinds of paraphernalia for conducting the fire sacrifice became manifest. The performer, that is the chanter, the offerer, the fire, and the action, and the action performed in terms of the supplementary Vedas. Also, the four principles of religiosity: truth, austerity, mercy, and cleanliness, and the duties in the four spiritual orders all became manifest. So Varanashram manifested from him. Okay, and four principles required. Dharmasya pada shatvara. Satya, Shaucha, Daya, Tapa. All these were manifested from him. So very interesting that Prabhupada mentions this performing religious activities in terms of social status and orders of life is required so that one doesn't fall to animalistic life, sinful life. Okay, then uh, it is more like if it is performed with nishkam bhav, then it could be called as vidya. Nishkam karma is vidya, but if it is performed with fruitive mentality, then it is allowed avidya. Allowed avidya means some kind of the sins which take one to hell is not allowed, but dharma which gives calm, that is allowed. Still one will be in bondage. अविद्या का लोअर पार्ट है वो, जो सिंस है वो, और ये जो है अविद्या का ऊपर वाला पार्ट है. ओके, गॉट इट ना? ओके, नेक्स्ट. Vidura said, "O great sage, whose only wealth is penance, kindly explain to me how and with whose help
Brahma established the Vedic knowledge which emanated from his mouth. Okay, then 37. Maitreya said, Maitreya said, beginning from the front face of Brahma, gradually the four Vedas, Rig, Yajur, Sama, and Atharva became manifest. Thereafter, Vedic hymns, which had not been pronounced before, priestly rituals, the subject matters of the recitation, and transcendental activities were all established one after another. okay, so everything, all arts came from him, all sciences came from him, all religions, four types of religion came from him, four types of sacrifice, performance, hota, udgata came from him. Okay, then, He also created the medical science, military art, musical art, and architectural science, all from the Vedas. They all emanated one after another, beginning from the front face. okay, so Prabhupada writes, spirituality or devotional service is the main science. And for sustenance of good upkeep of social order, military art is required, music is required, he writes. So they are also there to support the pursuit of spiritual knowledge. As a support to spiritual knowledge, these other knowledges are. So therefore, earlier music, the Varag music and all, that used to be only the songs related to Krishna used to be composed. If you see the Ragdari, all the padas, khyals, chota khyal, bada khyal, everything is in Braj Bhasha. Hori, 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 khelat Nandalal. Hori, 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 khelat Nandalal. So this is in Rag Adana. And the song is composed, it's a holy song. And like that, many songs. Bhajamana nisadina shama sundara sukha sagar prabhu Shri Radhavar. Bhajamana nisadina shama sundara. So all these are little padas which are composed. These used to be the standard songs for even general music learning, not just devotional music. बाहर के लोग भी सीखते थे तो यही सीखते थे. So that is how all music, all sthapatya is meant to glorify Krishna. Later on, when Mughals came, after their attack, that Darbari music started, just for the sake of entertainment. Okay. So in Swarga, etc., when the Apsaras perform dance, they sing something related to God's creation and God. Okay. Therefore, that Upabarhan, who was singing something not related to anything related to Krishna, so he got cursed, right? You become Dasi Putra. Okay. So all traditional songs, even on earth, what to speak of heavens, are related to some glory of God, direct or indirect. Okay. Okay, 39 to 42 you can read. 39, 40, 41, 42. Then he created the fifth Veda, the Puranas, and the histories from all his mouth, since he could see all the past, present, and future. Okay, then next. All the different varieties of fire sacrifice, Sodosi, Ukta, Purisi, Agni Shama, Aptaramya, Atreya, Vajapaya, and Gosava become manifested from the eastern mouth of Brahma. Okay, then Education, charity, finance, and truth are said to be the four legs of religion, and to learn this, there are four orders of life with a different classification of caste according to the vocation. Brahma created all this in systematic order. so very interesting. Prabhupada takes it. Usually it is Satya Daya Tapas Shaucham, but now it is written Vidya Danam Tapas Satyam. Okay, so Prabhupada takes it as Brahmachari life is mainly to gather Vidya. Grihastha life is for dana.
Vanaprastha life is for tapa, and sannyasi life is to preach satya. Nice, na? Purport Prabhupada writes. Okay, then. Then the thread ceremony for the twice born was inaugurated, as were the rules to be followed for at least 1 year after acceptance of the Vedas. Rules for observing completely abstinence from sex life, vacation in terms of Vedic injections, various professional duty in household life, and the method of maintaining all livelihood without anyone's cooperation by picking of rejected grains. So Prabhupada mentions usually the system is get trained as a brahmachari, and if you could continue, it's good to continue as a brahmachari and become directly sannyasi. If one can't, then one can respectfully change to grihastha ashram. Prabhupada mentions we had the opportunity to meet an avowed brahmachari in the personality of our spiritual master, Om Vishnupad Shri Srimad Bhakti Siddhanta Goswami Maharaj. Such a great soul is called a Naishtik brahmachari. Okay, then. Yes, you can. 43 to 46. The four divisions of retired life are the Vaikhanasas, Valakilas, Audumbaras, and Penapas. The four divisions of the renounced order of life are the Kutichakas, Bhavavodas, Hamsas, and Nishkriyas. All these were manifested from Brahma. Yeah, so different divisions of 4 types of sannyasis, 4 types of vanaprasthas, 4 types of grihastha, 4 types of all that is mentioned. Okay, next. The science of logical argument, the Vedic goal of life, and also law and order, moral codes, and the celebrated hymn Bhuva, and Swaha, all became manifest from the mouth of Brahma, and the Pranav Omkar was manifested from his heart. Okay, then. Thereafter, the art of literary expression, Ushnik, was generated from the hairs on the body of the Almighty Prajapati. The principal Vedic hymn Gayatri was generated from the skin, Tristap from the flesh, Anushtup from the veins, Jagati from the bones of the Lord of the living entities. So different chandas also came from his body. Then. The art of writing verse, Pankati, became manifest from the bone marrow, and that of Brihati, another type of verse, was generated from the life breath of the Lord of the living entities. Okay, so this is Prabhupada writes here, the Vedas should be vibrated as they are, although they are symbolically represented with letters. तो वेदों के ध्वनि को अक्षर नहीं समझना चाहिए, just syllabus नहीं समझना चाहिए. One time Prabhupada was asked by some disciples, Prabhupada, what is the meaning of Gayatri Mantra? Prabhupada that time said, there is no need to understand, you just chant Gayatri Mantra, knowing it to be divine. And few years later he gave the meaning of the mantra. So His Holiness Radhanath Swami Maharaj, he recalls and he gives a comment, why did he do that? He said, this is just to stress that simply by intellectual understanding we cannot understand the meaning of Bhagavatam or Gayatri Mantra. It is by surrender and by pleasure of Guru and Krishna that the meaning is automatically revealed. The meaning is already there in the mantra, and even if we chant by great respect without even knowing it, but surrendering to Guru and Krishna, if we chant, the meaning will be revealed. And no matter how much PhD analysis we do, somebody does PhD on Gayatri, doesn't necessarily mean, not necessarily, he will not understand the meaning of Gayatri, it won't touch his heart, right? So that is the meaning. Not that we shouldn't go try to understand the meaning, but thing is we shouldn't try to understand the meaning the way we try to understand the meaning of dictionary words. अच्छा ये गार्गेंचुअन का मतलब क्या है, चलो डिक्शनरी खोल के देखा, हाँ मतलब पता चल गया. वो तरीके से हमको गायत्री का नॉलेज नहीं पता चलेगा. समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? उसका स्पिरिचुअल पोटेंसी है और वो सरेंडर और उनके प्लेजर से ही हमको पता चलेगा उसका अर्थ.
हाँ, उसका एक पार्ट होगा कि वो एक्सप्लेन करेंगे और हम सुनेंगे, मीनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे, हम सुनेंगे, और हमको भी मीनिंग जानने की जिज्ञासा है. दैट इज गुड. बट अल्टीमेटली दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, नॉट ब्रेने प्रकाशित हो. इट्स रिवील्ड इन द हार्ट. ओके, मस्तिष्क में प्रकाशित नहीं होगा, वो हृदय में प्रकाशित हो. ओके, नेक्स्ट. Brahma's soul was manifested as the touch alphabets, his body as the vowels, his senses as the sibilant alphabets, his strength as the intermediate alphabets, and his sensual activities as the 7 notes of music. Okay, then Brahma is the personal representation of the Supreme Personality of Godhead as the source of transcendental sound and is therefore above the conception of manifested and unmanifested. Brahma is the complete form of the Absolute Truth and is invested with multifarious energies. again Prabhupada writes here, his transcendental value is not to be minimized. Even though he exhibited a tendency to enjoy his own daughter. Prabhupada लिखते हैं इसका explanation, there is a purpose for such exhibition of such tendency by Brahma. Purpose मतलब हमारे हमको सिखाने के लिए है ये. And he is not to be condemned like an ordinary living entity. हमारे लेवल पर खींच के नहीं लाना चाहिए ब्रह्मा जी को. अच्छा, हम भी मिस्टेक करते थे, को ब्रह्मा जी ने भी सेम मिस्टेक किया, ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए. ठीक है. देन Thereafter, Brahma accepted another body in which sex life was not forbidden, and thus he engaged himself in the matter of further creation. तो अभी क्यों बॉडी चेंज किया? तो बोले अभी तक वेद और सबको लाने के लिए ऐसी बॉडी चाहिए कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जैसी या फिर एब्सटेनेंस वाली बॉडी हो. तो तब वेद वगैरह वो रिनंसिएंट्स क्रिएट हुए, उससे वो छंद क्रिएट हुए, सब वो सब क्रिएट हुआ. हाँ, अभी जो एक्चुअल पर्सनालिटीज क्रिएट करने जा रहे हैं, तभी तो ऐसी बॉडी चाहिए कि विच कैन इन विच द सेक्स लाइफ इज नॉट फॉरबिडन. हाँ, तो बोलते हैं इन हिज फॉर्मर बॉडी विच वॉज ट्रांसेंडेंटल, affection for sex life was forbidden. Brahma therefore had to accept another body to allow himself to be connected with sex. मतलब कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा अपने मर्जी से कभी ट्रांसेंडेंटल रोल ले सकते हैं टू प्रोड्यूस ट्रांसेंडेंटल थिंग्स, और कभी मटेरियल रोल ले सकते हैं टू प्रोड्यूस मटेरियल थिंग्स. मतलब अपने सिचुएशन में वो डिवाइन ही है ब्रह्मा जी भी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. O son of the Kurus, when Brahma saw that in spite of the presence of sages of great potency, there was no sufficient increase in population, he seriously began to consider how the population could be increased. Okay. Shaligram bro. You can read till 54. Brahma thought to himself, alas, it is wonderful that in spite of my being scattered all over, there is still insufficient population throughout the universe. There is no other cause for this misfortune but destiny. Then? While he was thus absorbed in contemplation and was observing the supernatural power, 2 other forms were generated from his body. They are still celebrated as the body of Brahma. Okay. क्योंकि वो just 2 forms came out. He was just thinking कैसे करूं. 2 forms. One female form came out from his body, one male form. Means they came out as couple only. A couple came out of his body. Okay. वो कौन थे? स्वयंभुव, मनु और शतरूपा. Okay, then? The 2 newly separated bodies united together in a sexual relationship. Okay. Out of them, the one who had the male form became known as the Manu, named Swayambhuva, and the woman became known as Shatarupa, the queen of the great soul Manu. Okay. पांडुरंग शरण प्रभु, लास्ट तक पढ़िए अभी आप. Thereafter, by sex indulgence, they gradually increased generations of populations one after another. Okay. Then? O son of Bharata, in due course of time, he, Manu, begot in Satrupa 5 children, 2 sons, Priyavrata and Uttanapada,
and 3 daughters Akuti, Dehuti, and Prasuti. The third, fourth, fifth, sixth, seventh, sixth tak. All will be now dynasty of Priyavrat, Uttanpad, Devahuti, etc. वो सब अभी सिंस ये आगे पिक्चर में तो इनका सारा वंश आगे 6 कैंटो तक वही चलेगा आगे. ओके, यस. Now from Brahma they are created, Manu and Shatrupa. In one sense they became brother and sister. वैसे नहीं है वो, वही तो But कह रहे वैसा हैं. नहीं है ना. वो तो जैसे वेण के बॉडी से ही पृथु अर्ची कपल के रूप में बाहर आए. वेण की बॉडी जब चर्न की, पृथु भी आए और अर्ची भी आ गई. तो ब्रदर सिस्टर के रूप में बाहर नहीं आए वो, एज अ कपल ही बाहर आए वो. वो डिवाइन अरेंजमेंट्स है. दे केम आउट एज हस्बैंड वाइफ ओनली. Because when अधर्मा के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, फ्रॉम अधर्मा समथिंग लाइक lust and anger, greed or And something. they got married and हाँ, that time it is criticizable, but here दिस टाइम इट इज नॉट. क्योंकि दिस टाइम डिवाइन अरेंजमेंट से कपल ही बाहर आए हैं. यहाँ पे वो ब्रदर सिस्टर है ही नहीं. समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी के बॉडी के थ्रू बस मैनिफेस्ट हुए वो, बट एज अ कपल ही मैनिफेस्ट हुए, एज अ हस्बैंड वाइफ ही मैनिफेस्ट हुए वो. Heard it ना? परपट में भी लिखते हैं. प्रभुपाद एक्सप्लेन्स. एक्सप्लेन करते हैं उसको. देन The father Manu handed over his first daughter Akuti to the sage Ruchi, the middle daughter Devahuti to the sage Kardama, and the youngest Prasuti to Daksha. From them all the world filled with population. तो ऐसा करके उन्होंने, अब ये जो डॉटर्स और बाकी कहाँ से आई, बाद में उन्होंने मरीचि को भी उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, जिससे कश्यप आए. फिर उनको दक्ष के डॉटर्स दिए गए. समझ गए ना? 16 ऑफ. फिर मून आ गए एक जगह से. मरीचि से के दूसरे सन है मून, सोम. तो उनको बाकी कन्याएं दक्ष ने दे दी. समझ गया ना? तो ऐसे ऐसे अलग भी, केवल स्वयंभू मनु का ही लाइन नहीं है, और भी बहुत सारे ऋषिज क्रिएट किए, जो बोले ना सप्तर्षि क्रिएट किए, ये क्रिएट. तो सबके आपस में विवाह होकर किसी मेल का किसी फीमेल के साथ विवाह होकर और आगे डायनेस्टी आगे बढ़ी. ठीक है ना? ऑल राइट. सो Prabhupada just concludes by saying that ultimately Brahma ji is grandfather, but Krishna is great grandfather in one sense. Thus Brahma came from the lotus navel of Mahavishnu. Mahavishnu is expansion of Krishna. So Krishna is ultimately Pitamahascha. He is quoting 11th canto, 11th chapter, Vishwarup Darshan. वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च. नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते. You are Lord of air, the supreme justice Yama, the fire, the Lord of rains. You are the moon, you are the great grandfather. Therefore I offer my respectful obeisances unto you again and again. So this concludes Bhaktivedanta Purport, 3rd chapter, 3rd canto, 12th chapter, creation of Kumaras and others. And next chapter is appearance of Varahadev, which will be taken by some other speaker. So we conclude this time's syllabus. And I have something in mind. I was just thinking this time the yatra is going to Vrindavan. Govardhan. Braj Dham. So Vrindavan Dham. So now I thought I will take, unless you have any questions, I will move forward to the topic that I thought I will cover if the time remains. You have a question? Yes. 2. Every day Brahma rises, so when he sleeps, there is a pralaya happening. So that covers till Maharloka, means that pralaya. Yes. So at that time till Maharloka all are destroyed, all planets. Yes. And then again Brahmaji recreates. Yes. That is thing. That's how every day happens. And then after 1000 means 100 years of Brahmaji are finished. Then whole universe is
finished. destroyed, finished. Okay. Your question. Hare Krishna, Prabhuji. So Prabhuji, we have heard that Brahma ji has a body of intelligence, हाँ. but यहाँ पे उनकी bone marrow भी है, different चीजें बताई गई हैं. Yes. Symbolic means है या वो सब डिवाइन है. जैसे हम बोलते हैं ना, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, नित्यानंद प्रभु सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन ब्लड तो आया ना उनका जब ही, मतलब बने हैं ब्लिस से बने हुए नित्यानंद प्रभु सच्चिदानंद विग्रह, लेकिन जब ही पत्थर मारा जगाई माता ने तो ब्लड फ्लू ना, इट्स ट्रांसेंडेंटल. ओके, महाप्रभु भी रोते थे, माने टीयर्स तो आ ही रहे थे, तो टीयर्स जल तत्व नहीं है उनके. इट इज ओके, जल तत्व हो गए तो भी वो ट्रांसेंडेंटल जल है. सॉरी. ओके, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जल है वो. हमको कैसे कहा, हमको कहाँ दिख रहा है? अच्छा, फिर कृष्ण भी कैसे दिख रहे हैं बाकी लोगों को? हाँ, तो ये भगवान की अपनी अचिंत्य शक्ति से भगवान लोगों के क्षमता के अनुसार या भाग्य के अनुसार उनको दिखते हैं. जब भी भगवान अवतार लिए थे, शिशुपाल की तो पूर्ण मटेरियलाइज थे. जलेबी ज्यादा हो गया लगता है प्रभु जी को. आइसक्रीम ज्यादा हो गया. जलेबी खाया. कहा था शिशुपाल, तो उसकी तो कंप्लीटली डिवाइन आइज थी, लेकिन फिर भी उनको दिख गए ना कृष्ण. तो बोले हर एक को अपने अपने, जब भी अवतार लेंगे तब हर एक को दिखेंगे भगवान, चाहे डीमन हो, साधक हो या सिद्ध हो, लेकिन अपने अपने हिसाब से कृष्ण का आस्वादन होगा. हाँ, परसीव हो जाएंगे. जैसे क्षितिभुजाम शास्ता, जो दुष्ट राजा थे उनके लिए शास्ता के रूप में प्रकट हुए, हो समझ गया ना. और जो वृष्णि है उनके लिए परदैवत की तरह प्रकट हुए. तो सेम कृष्ण देख रहे हैं, लेकिन सेम कृष्ण नहीं देख रहे. समझ रहे हैं? जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण से माधुर्यम अनुभवम विना दर्शनम अपि अदर्शनम इव. माने कृष्ण का दर्शन लिया लेकिन माधुर्य का अनुभव नहीं हुआ, तो कृष्ण का दर्शन ना लेने बराबर है. तो शिशुपाल को दर्शन करके भी दर्शन नहीं हुए कृष्ण के. रुक्मिणी के भी, रुक्मिणी को भी जो राजाओं ने देखा, बाकी जो आए थे उसके लिए, तो उन्होंने भी रुक्मिणी देवी को देखा लिखा है, लेकिन देखकर भी नहीं देख पाए वो कोई. अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, यही तत्व वेदे शास्त्रे कहे निरंतर. ये माया सीता का एपिसोड आया ना, वहां पर ये बोलते हैं, रावण स्पर्शेर कार्यवार अचूक ना पाहिलं दर्शन, सीतार आकृति माया हरिला रावण. अरे सीता देवी के ट्रांसेंडेंटल डिवाइन फॉर्म को टच करना तो दूर की बात, उसको देख भी नहीं पाया रावण. तो माया सीता को देख पाया और वो उसको लेके गया. तो इस प्रकार से जो पूरा डिमोनियक है, नॉन डिवोटी है, उसको तो देखकर भी ना देखने जैसा है. जो साधक है वो देखेगा, लेकिन आंशिक अनुभूति होगी. कृष्ण को देखकर एप्रिशिएट करेगा, लेकिन गोपियों की तरह लॉन्ग नहीं करेगा. देख रहा है लेकिन फिर भी अतृप्त है आंखें, ऐसा नहीं होगा उसका. हर एक को अपने कैपेसिटी के हिसाब से कृष्ण दिखते हैं. तो ट्रांसेंडेंटल प्रेम है तो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म कंप्लीटली रिवील हो जाएगा. और केवल मटेरियलाइज है तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से कुछ तो दिखेगा, भगवान का एक आभास दिखेगा उसको, लेकिन भगवान नहीं दिखेंगे. ठीक है. अच्छा, भगवान के साइड से तो भगवान तो अवतरित हुए ही हैं. जैसे शक्कर तो शक्कर है, वो तो मीठी होती ही है, लेकिन पित्त वाला खाएगा तो कड़वी उसको लगेगी. तो शक्कर तो शक्कर ही थी, लेकिन कड़वी उसको क्यों लग रही है? वैसा. तो इसको मटेरियल परसीव हो रहा है, लेकिन भगवान तो अपने रूप में ही प्रकट है. क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता. तो भक्तों को कवर नहीं किया योग माया से. जो ऐसे देखने वाले लोग हैं तो अपने आप को एक योग माया से कवर करते हैं, ताकि देखने वालों को क्या दिखता है, केवल मैटर दिखता है. समझे? तो भगवान के साइड से भी वो योग माया से अपने आप को कवर कर दी, न अभक्तों के लिए. और रिसीवर के साइड से खुद का ही पित्त दोष है उसका, इसलिए नहीं देख पा रहा. दोनों साइड से हो गया क्लियर.
हाँ, मटेरियल कवरिंग उसके लिए है, मटेरियल कवरिंग यशोदा मैया के लिए नहीं है, वो अर्जुन जी के लिए नहीं है। बिल्कुल। हाँ हाँ। कोई वो तो भगवान को सोचना नहीं पड़ता, वो योग माया ही अरेंज करती है महामाया का आवरण। भगवान ऐसा हर एक को सोच के नहीं बोलते कि अच्छा इसका क्या भाव है, उसके अनुसार इतना मटेरियल आवरण लगूंगा, इसके लिए 2 स्वेटर पहनूंगा, इसके लिए 3 स्वेटर पहनूंगा। ऐसा नहीं है, समझ रहे? वो तो योग माया अरेंज अपने आप कर देती है वो सब, समझ गए ना? Bhishma is shooting arrows. That time he is seeing the spiritual form, करेक्ट। but others are seeing blood coming. They are seeing at the same time the material. डिपेंडिंग वो भक्त है कि अभक्त है उसके ऊपर है। Okay. Simultaneously दो एक ही जगह हो सकते। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आज का टॉपिक चलो करें। आज का टॉपिक मैंने डिसाइड किया है, सिंस वी आर गोइंग टू वृंदावन यात्रा एंड सम ऑफ यू मस्ट बी गोइंग। कितने जन जा रहे हैं अपने गोवर्धन? 1 2 3 4, बाकी बैग स्टे बैग में है क्या? अभी जाके आए? अभी कैसे जाके आ गए? हाँ तभी जाके आ गया आप। ओके 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 ओके। तो एनीवेज, तो आप मन से गोवर्धन जाना कार्तिक में। या वृंदावन चंद्र टेम्पल एक प्रकार से, या इनके गोवर्धन बेस में जाना। गिरी गोवर्धन बेस ना। वॉइस, गिरी गोवर्धन वॉइस में जाना। गोवर्धन धाम, गिरी गोवर्धन धाम। एनीवेज, क्या कह रहे थे? हाँ, तो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ धाम, ग्लोरीज ऑफ धाम एंड हाउ टू अप्रोच धाम, खास करके वृंदावन धाम। वो आप नवद्वीप और जगन्नाथपुरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन खास करके आज का टॉपिक है वो। ठीक है, मतलब जो भी 12:15 तक जितना मैं कर सकता हूँ हाफ एन आवर में, उतना हम कवर करेंगे। ठीक है, और आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी हम उसे ओके। तो देखिए, सबसे पहले वृंदावन धाम का गुणगान अनेक आचार्यों ने किया है। एक आचार्य श्रीनाथ चक्रवर्ती, वो लिखते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्येण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापु कौन है हमारे लिए? सारे भगवान के रूप हैं, वो तो पूज्य है, लेकिन आराध्य कौन है? व्रजेश तनय, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। और आराध्य क्या, कौन सा धाम है हमारे लिए? तद्धाम वृंदावनम। ओके, मतलब हमको डेस्टिनेशन हमारा द्वारका नहीं है, मथुरा नहीं है, ये भौतिक जगत तो है ही नहीं। लेकिन क्या है? वृंदावन धाम है। और बाकी भी भगवत स्वरूपों को और उनकी शक्तियों को हम देखते हैं, विग्रहों को, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी राधा कृष्ण में ही मति रहे। रुक्मिणी देवी को भी प्रार्थना करेंगे, आज रुक्मिणी द्वादशी है। प्रार्थना क्या करेंगे? हे रुक्मिणी देवी, आप जैसे आपके द्वारका वाले कृष्ण के प्रति इतना प्रेम से 100 जन्म भी लेकर वही कृष्ण को पाना चाहते हैं, वैसे ही आप आशीर्वाद दो ताकि हम भी कितने भी जन्म लगे राधा कृष्ण को ही पाना है हमको। ऐसे हमारी प्रार्थना हो सकती है। ठीक है, फिर रम्या काचित उपासना। उपासना किसकी सबसे उत्तम है? रजवधू वर्गेण या कल्पिता, जो गोपियों ने करी थी। इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। किसी भी इसके लिए प्रमाण हम भागवतम का लेंगे, और हम सबका
डेस्टिनेशन या गोल क्या है? प्रेमा पुमार्थमान, और कोई गोल नहीं। ये किसका मत है? श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम। इसलिए तत्र आदरो न परा, हमारा आदर अत्यंत आदर है उसके प्रति। ठीक है। फिर रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? वैकुंठा जनिता वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकी न कहा। रूप गोस्वामी कह रहे हैं वैकुंठ से जनित, वैकुंठ से भी अधिक मधुपुरी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। मथुरा, वैकुंठ में जन्म नहीं होता। ये कौन से वैकुंठ की बात कर रहे हैं? ऊपर, वैकुंठ तो ऊपर ही है, लेकिन ऐश्वर्य गोलोक, बिल्कुल सही। आपको कैसे पहचाना? हाँ, मैंने कभी बताया? पहले बताया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन यहां पर वैकुंठ का अर्थ ऐश्वर्य गोलोक लेना चाहिए, ये कैसे पता चला? अनुमान से किया। ओके ओके अच्छा किया, लेकिन अच्छा गेस किया, क्योंकि यहां पर जीव गोस्वामी लिखते हैं कमेंट्री में कि वैकुंठात, जीव गोस्वामी एक आचार्य लिखते हैं कमेंट्री में, वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी। बोले वैकुंठ लेने का अर्थ यहां पे ऐश्वर्य गोलोक या वैकुंठ वृंदावन लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर दो चीजों में कंपैरिजन किसी के बेसिस पर होती है, तो दोनों में सिमिलैरिटी भी कुछ होनी चाहिए। समझ गए? वैकुंठ में मधुपुरी बेटर है क्योंकि वहां पर भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, ऐसे लिखा है कृष्ण। अरे वहां पे कृष्ण जन्म लेते हैं, तो वैकुंठ में कृष्ण जन्म नहीं लेते, ये कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है। वहां पे तो कृष्ण है ही नहीं, तो जन्म नहीं लेते कहने का क्या मतलब है? तो ऐसा कुछ धाम होना चाहिए जहां पे कृष्ण है लेकिन जन्म नहीं लेते। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे पहले ये लॉजिक का ये फॉलो करो, पूरा तो सुन लो पहले, कैसे आप ये इसका अर्थ है, लॉजिक ये है कि देखो, वैकुंठ धाम से मथुरा मधुपुरी श्रेष्ठ किस लिए है? क्योंकि यहां पे कृष्ण जन्म लेते हैं। तो ऐसा धाम से श्रेष्ठ होने चाहिए लॉजिकली कि जहां पे कृष्ण है लेकिन जन्म नहीं लेते, तो ही लॉजिकली ये सेंस कर। जहां पे है ही नहीं कृष्ण, उस धाम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये बोल के, ये लॉजिक देके कि यहां पे कृष्ण जन्म लेते हैं। समझ में आई? ये फॉलो कर रहे हैं सब लोग? किसी को नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? कृष्ण है ही वहां पे, लेकिन स्पेशल क्या है? जन्म लेना स्पेशल है ना। कृष्ण तो वैसे है ही मथुरा में, जन्म लेना स्पेशल है। तो ये किससे डिस्टिंग्विश करता है? कौन से धाम से डिस्टिंग्विश करता है? ये लॉजिक देना कि यहां पे कृष्ण ने जन्म लिया है। हाँ, जहां पे जन्म नहीं है, वास है लेकिन जन्म नहीं है। तो ऐसा कौन सा धाम है जहां पे कृष्ण का वास है लेकिन जन्म नहीं है? ऐश्वर्य गोलोक। तो वो ऐश्वर्य गोलोक से बेटर मथुरा है, क्योंकि यहां वाली मथुरा, लेकिन मेमोरी में तो होता है, मेमोरी में होता है जन्म उनका, ठीक है लेकिन वो वैकुंठ वृंदावन में मेमोरी में भी नहीं है किसी के कि कृष्ण का जन्म है इत्यादि। हाँ, तो यहां पर वो नरलीला का जो पार्ट है, जन्म लेना, ये भूषण है, ये इट्स एन ऑर्नामेंट। तो इसलिए वैकुंठ वहां पे वैकुंठ वृंदावन लेना चाहिए या ऐश्वर्य गोलोक लेना चाहिए। उससे बेटर मधुपुरी है, मथुरा। उससे भी रासोत्सव कहाँ पे हुआ? तत्रापि रास वृंदारण्यम यहाँ पे गोकुलपते तत्रापि रासोत्सवात्। वृंदारण्य और भी वैकुंठाजनिता वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य उदार पाणी रमण तत्रापि गोवर्धन। और उसमें भी रासोत्सव हुआ, लेकिन रास तो गोवर्धन में भी हुआ। और वहाँ पर और भी स्पेशल है कि भगवान ने गोवर्धन धारण किया और सारी गोपियों की रक्षा करी, तो इसलिए वो और भी श्रेष्ठ है। वो वृंदावन में भी नहीं हुआ। गोवर्धन में रास भी है प्लस स्पेशल ये भी है, तत्रापि गोवर्धन।
फिर राधा कुंडम यहाँ पे गोकुलपते प्रेमामृता प्लावन, यहाँ पे कृष्ण ही डूब जाते हैं प्रेम के राधा रानी के प्रेम में, जो गोवर्धन में भी स्पेशल है, क्योंकि राधा कुंड में इज राधा इज लव, उसमें कृष्ण डूब जाते हैं और राधा रानी बचाती भी है उनको जे तरंगे सेवा डूबे, जो डूबता है वो तैरता है, वो बचता है वहां पे इसका मतलब ऐसा नहीं कि उधर जाके कूदो अभी जस्ट बात ले लो, बात भी लेना है तो बहुत ही प्रार्थना पूर्वक उसमें बात लेना है। जस्ट अंदर जाओ, गायत्री करो, प्रार्थना बोलो, बाहर आ जाओ, है ना। हाँ, वो अगर मान लो बहुत ही हमारा कॉन्शियसनेस एकदम गड़बड़ वाला है तो बस तीन ड्रॉप ले लो और ये करो। प्रार्थना भी अंदर उतर के नहीं कर पाते, अगर पानी में उतर के प्रार्थना वाला भी कॉन्शियसनेस नहीं रख पाते तो बेटर है दर्शन करके जस्ट 3 आचमन कर लो या सर पर थोड़ा सा डालो और चलते बनो अगर अंदर उतर के पूरा प्रार्थना बोल सकते हो, या ऐसा समझो जितना देर तक आप प्रार्थना बोल सकते हो उतना देर तक ही स्नान करो। जैसे ही प्रार्थना बंद, बाहर निकलो, हो गया स्पेसिफिक प्रार्थना वही जो हम बोलते हैं, कोई गोपी गीत बोलता है, कोई वो राधिकाष्टकम बोलता है, राधा कृपा कटाक्ष बोलते हैं, या आप उपदेशामृत पूरा बोल सकते हो आप अंदर, जहाँ पे राधा गुण का ही महिमा है। राधिकाष्टकम बोल सकते हो, राधा रानी की कोई भी प्रार्थना है बोलकर बाहर आ जाओ। राधा कुंडाष्टकम भी है, वो आता है तो वो बोलो, ठीक है। गौरांग महाप्रभु की कुछ प्रार्थना है तो वो भी बोल सकते हो कि गौरांग महाप्रभु ने ही क्रिएट माने डिस्कवर किया राधा गुण। क्या फिर अपने रघुपति उपाध्याय कहते हैं, क्या डाउट है? कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बात लेने की चर्चा हो रही थी। बात, हाँ, प्रेयर्स, हाँ। वैसे तट पे रह के भी प्रेयर्स ही करने हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि प्रेयर वाला कॉन्शियसनेस कंटिन्यू रहना है, क्योंकि मतलब पूरा हमारा वो बोलते हैं ना, गया के सब जगह के भूत गया पे उतर जाते हैं, इन गया के भूत कहीं नहीं उतरते। समझे क्या मतलब है? सब जगह के भूत हम पर कहीं भी भूत ने चपेट लिया, मान लो पूना में या मुंबई में, तो उतर जाएगा। गया जाएंगे तो वो मांत्रिक वगैरह रहते हैं उधर गया में, वो मंत्र वगैरह बोलेंगे, भूत उतर जाएगा। लेकिन जिस भूत ने गया में चपेट लिया हो हमको, हाँ, वो मंत्रों से नहीं उतरेगा उसको कुछ और करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ का सारा जो प्रजल्पा, जो भी गड़बड़ कर चुके हम, वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड जाकर सब माफ हो जाएगा। वहां बैठ के कुछ प्रजल्पा करेंगे तो गए, फिर पूरे डूब गए। फिर ओ यमुना में नहीं, किसी तो नाली में डूब गए फिर हम हाँ, संसार में डूब गए वहां जाके प्रजल्पा किया तो समझ गया ना। गया के भूत किधर नहीं उतरते ओके, तो ये कुछ वृंदावन की महती बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका भी एक सुनते हैं। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांगम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। बोल रहे हैं अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम, बिना राधा रानी के चरण रेणु की आराधना किए बिना, अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांगम, बिना वृंदावन धाम का आश्रय लिए जो राधा रानी के चरण कमलों के द्वारा टंकित है, उत्टंकित है, भूषित है। असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, जो खास करके राधा रानी का दास्य चाहते हैं, ऐसे भाव भक्तों से चर्चा किए बिना
उत श्याम सिंधो रसस्यावगाह। श्याम रस कैसे प्राप्त होगा उसको? नहीं प्राप्त होगा। रेफरेंस रघुनाथ दास गोस्वामी, दिस इज इन स्तवावली आई थिंक। स्तवावली इज द बिग कंपोजिशन। स्तवावली में से भी ये एक स्तव में आता है। ये कहाँ आता है? ये व्रज विलास स्तव में आता है मेरे ख्याल से। देखो एक बार, आपको मालूम, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम, ये कहाँ पे आता है? रघुनाथ दास गोस्वामी का स्तवावली में है पक्का। स्तवावली का कौन सा स्तोत्र है वो आप चेक कर लेना, ठीक है? ओके ओके, तो अभी कुछ घटनाएं देखते हैं। चलो आप ही बताइए कि कौन सी घटनाएं आपको कृष्ण लीला से स्मरण है जिसमें वृंदावन धाम का सर्वोच्च रूप सिद्ध होता है, बाकी सब में सर्वोत्कर्ष सिद्ध होता है। कोई ऐसा पास टाइम बोलिए या कोई ऐसी घटना बोलिए लीलाओं में से जिससे सिद्ध होता है कि वृंदावन धाम सर्वोत्कृष्ट है। क्या? संकल्प कल्प धर्म में है, संकल्प प्रकाश स्तोत्र स्तवावली का ही है ना? स्तवावली में संकल्प प्रकाश स्तोत्र, ठीक है, बोलो। हाँ वेरी गुड। नंदम कृष्ण कीर्तन प्रभु ने बताया, नंदम महाराज प्रयाग जाना चाहते, प्रयागराज ही आए हैं उधर। बोलते अरे मैं वृंदावन में आता हूँ पावन सरोवर में नहाने के लिए। तो क्या एक प्रभु जी कह रहे थे कि हम कुंभ नहीं जाते क्योंकि पावन सरोवर में नहाने से ही प्रयागराज का सारा उसे 100 गुना अधिक भक्ति का फल मिल जाएगा। यस हाँ, कुरुक्षेत्र में देखती हैं कृष्ण को, गोपियां बोलते अरे हाँ इहा लोकारण्य, और हाथी घोड़ा रथ ध्वनि तहा पुष्पारण्य, पिक भृंग नाद शुनि। बोलते यहाँ पे क्या है, सब हाथी घोड़ों की आवाज चल रही है, सब पूरा नॉइज चल रहा है। वहां पे कोयल गाती है, वहां पे आप आओ। तुम्हारे ये अन्य वेश, अन्य देश, अन्य संग, अन्य देश, ब्रजवासीर कबू नहीं भाई, ब्रजजनेर कबू नहीं भाई। ये तो क्या नया हुलिया बना रखा है तुमने, ये क्या राजवेश लिया है, ये क्या है, ये वो सब नया संग। बोलते हमको कभी पसंद नहीं है ये। व्रज में आओ तो हमारे सखा हो, गोपाल हो, व्रज में आओ वही हमको पसंद है। तो व्रज सबसे ऊपर है, ये समझ में आता है उससे, ठीक है। एनीवे आप बोल रहे थे, आप कह रहे थे एक मतलब वृंदावन की जो परिसीमा है, तो वहाँ पे गोप गोपियों को पहले मतलब बलराम जी ने ऐसे वो सीमा खड़ी की थी कि उसको पार नहीं करना है, वो इसके बाहर मटेरियल वर्ल्ड। तो जब गोप पूछ रहे थे कि ये क्या है, तो वो बोले कि बाहर ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कृष्ण को भूल जाते हैं। तो वो पहली बार अस्टॉनिश हुए थे कि अरे ऐसी भी जगह है जहाँ पे लोग कृष्ण को भूलते हैं। सो दैट एक्सप्लेन मतलब वृंदावन के महिमा। अच्छा, ये मैंने पहली बार ये पास सुना। कहाँ से है ये? मैंने क्लास में कहीं क्लास सुना में है। सुना कहीं। ओके, तो बट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। गंगा भी है, वो तो है, मानसी गंगा, ठीक है। एनी अदर पास टाइम? एक पास टाइम है ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे मुझे एक यहाँ पर एक पत्थर बनाओ, कुछ तो बनाओ ताकि ब्रजवासियों की धूली मेरे सर पर भी गिरे। उद्धव जी ने भी बोला एक गुलमलता बनाओ मुझे, जिससे व्रज की और व्रज गोपियों की ग्लोरी हमको पता चलती है। एनीवेयर एल्स? हाँ, श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बीच में डिस्कशन होता है, वहां पे प्रूव करते हैं अरे जिसको तुम वैकुंठ का ऐश्वर्य समझते हो, वो तो हमारे वृंदावन के एक अणु रेणु में समाया हुआ है। ललित गति विलास अवलगु हास प्रणय निरीक्षण कल्पित और माना, विष्णुदेव भी ग्लोरीज बोलते हैं। इतने महान भक्त, आपने मृत्यु के समय झूठ तो नहीं बोलेंगे।
ठीक है, फिर बृहद भागवतामृत में नारद मुनि सबसे बड़े भक्त की ये करते हैं, शोध करते हैं, तो सब संशोधन करते, क्या पता चलता है उनको? गोपी ही सबसे बड़ी यहाँ है, बड़ी है, भक्त, बड़ी भक्त है। और सेकंड पार्ट में बताते गोप कुमार तभी संतुष्ट होता है जब तक, तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक ब्रज जाकर ना पहुंचे। ठीक है, शिव जी जहां पर नंदीश्वर बनते हैं, ब्रह्मा जी जहां पर दानगढ़ मानगढ़ विलासगढ़ बनते हैं, ऐसा धाम। ठीक है, और कुछ कह रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी देवी को भी एंट्री नहीं मिली। ठीक है, अभी हम बस क्विकली वृंदावन जाने के लिए क्या गुणों की आवश्यकता है, या कैसे जाना चाहिए, कैसे धाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो मैं कुछ लिखता हूँ बोर्ड पर। और मैंने वो थोड़ा सा अलग अलग पास टाइम से वो गुण निकाले हैं। बहुत सारे गुण होने चाहिए, लेकिन ये 6 प्राइमरी मैंने पास टाइम से आई टुक आउट। सो लेट्स सी। ऐसे कैसे? एक में परमानेंट सही है क्या? हो जाएगा ना? करेंगे? थोड़ा पानी लगाना पड़ेगा क्या? हाँ? नहीं। हरे कृष्ण। सॉरी, जा नहीं रहा ना, ये जा रहा है। ठीक है, इतना भी खाली हो गया ना, हमारा काम हो गया। हाँ हाँ शक्तियाँ परमानेंट है, इसलिए वो जाने में ठीक है, इतना भी हुआ तो भी काफी है मेरे। ठीक है, ट्राई करो एक बार, नहीं हुआ तो छोड़ दो। हाँ, बॉटल से ले लो। रिफिलेबल मार्कर, ये परमानेंट मार्कर। ओ माय गॉड, ये क्यों रखा है इधर? फिर ये कहीं और रख दो प्रभु। ये जाएगा तो उसको थोड़ा टाइम लगा के। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इतना खाली हो गया, काफी है। ये बाहर ही रख दो। ये मैं ड्रॉवर में 2 दिखे तो दोनों ऊपर लाए मैंने। ये जा रहे हैं ना, देखो। इसको ऊपर लिखने के बाद चलेगा। ओह वाह, हाँ क्या रहता है? इथेनॉल, तो वो उसको वो रिएक्ट करता है। ओह माय गॉड, हाँ, थॉर्न को थॉर्न से निकाल रहे हैं वाह, अमेजिंग है। तो ये आइडिया मुझे मालूम नहीं था, अच्छा खासा निकल रहा है। नहीं, काम करो ना, उसको रहने दो थोड़ी देर, और फिर रिएक्ट होने दो ना, फिर सबको करो और फिर उसको लास्ट में करो। नहीं, ऐसा करते भाई, इसको करो तो सबको करो, और ऊपर से नीचे आओ बाद में, पोस्टे पोस्टे। नहीं, नहीं, पूरा करना वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो पार कर इसको करते करते। सोप, एनीवे मैं क्या करता हूँ, बाकी का आप करो, ये पहुंचना मत अभी, ये पूरा होने के बाद फिर पहुंचना, लाइन से पहुंचना चाहिए ऊपर से। हाँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये तो रेड है। हाँ ठीक है,
Paragraph phrase. Hare Krishna. These different qualities required to go to approach Vrindavan. Okay? पहला क्वालिटी अभी करो नहीं जा रहा माया नहीं जा रही जीव भी नहीं जा रहा ठीक है चलेगा ब्रो कोई प्रॉब्लम नहीं नो प्रॉब्लम बाद में करेंगे रिस्पेक्ट एब्जॉर्प्शन अच्छा शायद से उसी वक्त करना पड़ता है ऐसा है क्या मुझे लगा वो थोड़ा वो तब तक इतना उड़ता होगा इसलिए मैंने सोचा रिएक्ट करता होगा इतना उसके साथ इसलिए रिएक्शन के लिए टाइम चाहिए ऐसा सोचा अच्छा ये फंडा है जब तक रिएक्ट करेगा तब तक उड़ जाए इसलिए ठीक है एनीवेज एब्जॉर्प्शन ईगरनेस तो ये डिफरेंट पास टाइम्स हैं तो उससे वो क्लियर होता है ओके चलो करते हैं परमिशन से तो जो कोई वृंदावन गया है गौर लीला में सब लोग परमिशन के साथ गए हैं इंस्ट्रक्शन से या परमिशन से गए हैं वो कोई भी एग्जांपल लो हैव यू नोटिस्ड कोई भी अपने मन से नहीं गया है वृंदावन जगदानंद पंडित उसको बोले सनातन गोस्वामी के साथ रहने का उनकी इंडिपेंडेंट डिजायर थी जाने की लेकिन ही स्टिल आस्क्ड फॉर परमिशन एनी अदर एग्जांपल हिमसेल्फ गदाधर पंडित बोले उनको बोले अरे आपको मैंने असंतुष्ट किया इसलिए मैं जा नहीं पाया फिर जब भी जाना था तभी वो राय रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य सबसे परमिशन मांग के गए ठीक है एनी अदर एग्जांपल रूप सनातन इंस्ट्रक्शन के बाद गए महाप्रभु खुद एंड इवन नित्यानंद प्रभु वो सन्यासी के साथ गए ठीक है और अपने कौन अद्वैताचार्य उनका पता नहीं एग्जैक्टली क्या है वो थे वृंदावन में अद्वैत वट के नीचे उनको मिले ना वो मदन मोहन कविराज गोस्वामी उनको सपने में नित्यानंद प्रभु ने आकर आदेश दिया आर्य आर्य कृष्णदास ना करी हो भय वृंदावने याहतः सर्वलभ्य होय हाँ सब मिला है तो आदेश मिलने के बाद वो चले गए ठीक है तो ये हो गया परमिशन एच माने ह्यूमिलिटी तो जीव गोस्वामी को 2 बार अनुभव आया कि दोनों बार रूप गोस्वामी ने बोले अरे वो जी पंडित के साथ विवाद कर रहे थे बोले तुम अगर नम्र नहीं हो विनयशील नहीं हो तो वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं है तुम बाहर होकर आओ समझ रहे आपको जीव गोस्वामी का कोई दोष नहीं था उसमें लेकिन रूप गोस्वामी हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ठीक है प्रबोधान सरस्वती ठाकुर भी बोलते हैं स्थावर जंगम से भी अपने आप को तुच्छ समझकर वृंदावन में रहो एच हो गया फिर आर रिस्पेक्ट तो उदाहरण बोलते हैं रामानुजाचार्य जब भी ये जनरल धाम के लिए है जब भी वो तिरुपति दर्शन के लिए जाते हैं तो पूछते हैं एक धामवासी को शूद्र को पूछते हैं कि अरे धाम किधर है बालाजी भगवान किधर है तो दिखाते है उधर है करके
तो रामाचार्य दंडवत करते हैं उसको, तो शिष्य पूछते आप इसको क्यों दंडवत कर रहे हो? तो बोलते इसने मुझे भगवान की तरह दिखाया, ये गुरु है। रामानुचार्य जनरली एक ऐसा काम करने वाले श्रमिक को पूछते हैं भगवान किधर है, बालाजी किधर है, तो दिखाते ऊपर है करके ऐसे, तो पहाड़ के ऊपर दिखाते, तो दंडवत करते हैं उनको। तो शिष्य कहते हैं इनको क्यों दंडवत कर रहे हो, तो शूद्र है। तो शूद्र नहीं है, तो गुरु है, इसने भगवान की तरह दिखाया मुझे। सनातन गोस्वामी भी बुढ़ापे भी परिक्रमा करते थे, तो इतना रिस्पेक्ट धाम के प्रति है। तो आर, इसको डिटेल में भी चर्चा कर सकते हैं, मैं भी नेक्स्ट टाइम कभी। धाम की ए माने एब्जॉर्प्शन। तो बोलते हैं प्रबोधान सरस्वती, धाम में जब भी हो तो दो चीज अवश्य करो, या तो धामवासी की सेवा करो या तो श्रवण कीर्तन करो। प्रबोधान सरस्वती, धामवासी की सेवा, श्रवण कीर्तन। और उसी में तन्मय रहो सदैव। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने तन्मय रहते थे कि शेर पानी पीने के लिए आ गया, फिर भी उनको पता नहीं था, फिर भी जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे। या ऊपर से इतनी धूप लग रही है फिर भी ध्यान नहीं है। तन्मयता। एस, सर्विस एटीट्यूड। तो यहां पे बोल रहे हैं जो जो भक्त गए हैं उधर सेवा ही की है उन्होंने, जो जो भक्त गए हैं। दुखी कृष्णदास गए, उनको पहली सेवा क्या दी, झाड़ू लगाओ। फिर बाद में उनको झाड़ू मारते मारते नूपुर मिल गया, बाद में नाम क्या पड़ गया, श्यामानंद प्रभु। कविराज गोस्वामी 90 की उम्र में भी सेवा ही कर रहे हैं वहां पर वृंदावन जाकर। माधवेंद्रपुरी, अच्छा गोपाल मिल गए, चलो अभी बाकी सब तुम लोग संभालो, ऐसा नहीं, पूरा उनका सारा जिम्मा उत्सव का। हाँ, एक दिनेर उद्योगे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे होय अन्य न जानिला। एक एक व्रजवासी एक एक गाभी दिला, सहस्र सहस्र गाभी गोपाले रहिला। सब उनका सेवा व्यवस्था लगा कर फिर माधवेंद्रपुरी वापस चंदन लाने के लिए, चंदन यात्रा चल रही है अभी, वहां चले गए जगन्नाथपुरी। तो सेवा भाव। और ई लास्ट, ईगरनेस फॉर द धाम। जब भी धाम में नहीं है, ये 6 महीने हमको ईगरनेस डेवलप करना है। कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। जैसे महाप्रभु वॉज ऑलवेज ईगर। ओके, जैसे जब भी वो पहली बार कभी जाना चाहते थे वृंदावन, एज सुन एज इनिशिएटेड, फिर आकाशवाणी हुई अरे नहीं आपको संकीर्तन, महाप्रभु गया से डायरेक्ट जाने वाले थे वृंदावन, तो आकाशवाणी हुई कि नहीं आपको संकीर्तन का प्रवर्तन करना है, युग धर्म प्रवर्तन करना है, आप नवद्वीप चले जाएंगे। दूसरी बार ये कल का वृंदावन चंद्र का टेम्पल, लाइटिंग लगने के बाद ऊपर चांद भी है, और ये मैं सेवा ऑफिस से निकला बहुत सुंदर है रियली। और सब कुछ नहीं है इसमें, वो झंडा ऐसा लहरा रहे थे तीनों, ऊपर से लाल लाल झंडे लगे हैं वो तो क्या कह रहा था, हाँ दूसरी बार कभी संन्यास के बाद फिर नित्यानंद प्रभु ने शांतिपुर की ओर उनका रोख बढ़ा दिया। ठीक है, वहां पे भी वो तुरंत जाने निकले, दौड़ने लगे कटवा से वृंदावन वृंदावन करके फिर तीसरी बार पूरी होकर, पुरी से बंगाल गौड़ देश होकर जाने वाले थे, राम के लिए होकर, और बीच में राय स्वरूप सनातन बोले अरे इतने लोगों के साथ मत जाइए, फिर लौट आ गए। नृसिंहानंद ब्रह्मचारी ने भी वहां तक ही रोड बनाया मन में, वहां तक ही जाके आए, आगे रोड का काम हुआ ही नहीं तो वापस आने वापस आना पड़ा।
और चौथी बार जब फाइनली जा पाए वो वृंदावन, तो इतना ईगरनेस। और जब ही गए झारखंड फॉरेस्ट से, जब भी झारखंड फॉरेस्ट में थे, जहां देखते वृंदावन देख रहे थे, जहां वन देखा वृंदावन, इतना ईगरनेस। जहां पे नदी देखी यमुना, जहां पे पर्वत देखा गोवर्धन। तो और जितना एक्सटेसी झारखंड में था, उसके 1000 गुना एक्सटेसी मथुरा में, उसके 1000 गुना एक्सटेसी जब वृंदावन में प्रवेश किया तभी। सोचो, तो ऐसा उनका एक्सटेसी बढ़ता गया। तो ईगरनेस, एंथुजियाज्म। एक मैंने, ठीक है, मैंने एक सॉन्ग लिखा था, तो ठीक है, थोड़ा 5 मिनट है, मैं प्रेजेंट करता हूँ। वृंदावन से रिलेटेड है। कौन? ठीक है, 2 सॉन्ग्स है, 2-2 मिनट में मैं ऐसे देख, अगर आपकी संतुष्टि के लिए, होपफुली संतुष्ट हो जाएंगे आप इससे। ठीक है सर। मनवा जा रे तू जा रे राधा रानी के पास, मनवा मनवा जा रे तू जा रे राधा रानी के पास। भाते नहीं इस जगत के नाते, विषय भोग बस दुख दिलाते। कब तक रहेगा ऐसे उदास, मनवा जा रे तू जा रे राधा रानी के पास, मनवा जा रे। तो ये तो क्लियर है, इस जगत के नाते में कुछ रखा नहीं है, कुछ भाते नहीं है, विषय भोग किया मैंने लेकिन दुख ही मिला है बस। मतलब मन को समझा रहे, तूने विषय भोग किया है लेकिन दुख ही मिला है तुझे, अब तो कब तक उदास रहेगा, अब तो जा राधा रानी के पास शेल्टर लेने के लिए। बिना भजन के जीते जीते, बिना भजन के जीते जीते, दिवस मास और बरस हैं बीते, दिवस मास और बरस हैं बीते। क्या है भरोसा कब तक है सांस, मनवा जा रे तू जा रे राधा रानी के पास, मनवा जा रे तू जा रे राधा रानी के पास। सहज कृपा की मूरत राधा, सहज कृपा की मूरत राधा। चरण शरण में कोई न बाधा, चरण शरण में कोई न बाधा। अवसर न कोई इससे है खास, मनवा जा रे तू जा रे राधा रानी के पास, मनवा जा रे तू जा रे राधा रानी के पास। बोलो श्री राधा रानी की जय। और एक गाँव पिछले 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 मास में लिखा था। राधे सुन लो अरज हमको ब्रज में बसाओ, कब से आस धरी है हमको ब्रज में बसाओ। सुबह से शाम हम तो भजन करेंगे, सुबह से शाम हम तो भजन करेंगे। राधे श्याम
राधे जपेंगे, राधे श्याम राधे जपेंगे। परिक्रमा व्रजमंडल की हमसे लगवाओ, राधे सुन लो रज हमको, ब्रज में बसाओ, ब्रज में बसाओ। संतों के मुख से तेरी कहानी सुनेंगे, संतों के मुख से तेरी कहानी सुनेंगे। जहाँ पे रखोगी राधे वहीं पे रहेंगे, जहाँ पे रखोगी राधे वहीं पे रहेंगे। जो भी सेवा हो अपनी हमसे करवाओ, राधे सुन लो अरज हमको, ब्रज में बसाओ। कब से आस धरी है हमको, ब्रज में बसाओ, ब्रज में बसाओ। श्री ब्रजधाम की जय। तो धन्यवाद। अभी अभी यहाँ का इस बार का सेशन यहीं पे विराम देना पड़ेगा। अगली बार जब भी आप कृष्ण की इच्छा हुई तो वापस मिलेंगे। हरे कृष्ण। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्ण। यस, इस पे एक पर क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना। वृंदावन नहीं जाना चाहिए, ये कहाँ बोले प्रभुपाद? अब बिना परमिशन तो पी, तो पहला तो परमिशन लिखा ही है हमने ना ऊपर। हाँ, अगर कोई गुरु पहले से नहीं है तो फिर वृंदावन में जाना अलग बात है। अभी गुरु है और परमिशन नहीं ले रहे तो प्रॉब्लम है, समझ रहे ना? विदाउट परमिशन भी सीकर्स गए हैं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो धाम ने इंस्पायर किया उनको इसलिए चले गए वो, और धाम ने कृपा दी उनको इसलिए। अभी जिनको मालूम है कि अरे गुरु वैष्णव का ये आवश्यक है तो उनको तो परमिशन के साथ जाना चाहिए। सीकर से कुछ मालूम ही नहीं है और धाम उनको इंस्पायर कर रहा है, वो जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? हरे कृष्ण। अधिष्ठात्री मतलब खुद राधा रानी वृंदे देवी वृंदा देवी है। वृंदा तो ऐसा भी कहते राधा रानी इज स्ट्रिक्ट ऑल्सो एंड सॉफ्ट ऑल्सो। सो जो भी हम वृंदावन में ऐसे मतलब इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में कुछ अपराध करते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है ना। हाँ, वैसे भी हम अपराध करना भी नहीं चाहते पहली चीज, लेकिन बिकॉज धाम इतना कृपालु है तो हमको तो ये क्या बोलते हैं अफसोस होना चाहिए कि अरे यहाँ पे धाम कैसे हम अपराध कैसे कर बैठे हम। तो समझ ना, वैसे नहीं कि जस्ट यहाँ के अपराध का फल बहुत तीव्र मिलता है इसलिए अपराध नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ भी इतने कृपालु राधा कृष्ण हैं, उनका मैं अपराध क्यों करूंगा, ऐसा सोचकर अपराध नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? यस यस। ये एटीट्यूड वो सर। हरे कृष्णा। हरे यहाँ पे हम विराम देते हैं, प्रभु जी भी आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो ये बहुत प्रभु जी का काइंडनेस था कि सेकंड टाइम इतनी जल्दी प्रभु जी मान गए आने के लिए, और हम सभी को भक्ति रस में डुबाया प्रभु जी ने, है ना। तो हम बहुत ही कृतज्ञ हैं, रियली वेरी ग्रेटफुल दैट प्रभु जी केम एंड टेक आउट हिज प्रीशियस टाइम। तो लाइक टू रियली हार्टली थैंक प्रभु जी फॉर एक्चुअली ऑल ब्रह्मचारीज आर आल्सो वेरी इंस्पायर्ड प्रभु जी। दे आर आल्सो आस्किंग, हमें पता ही नहीं था माता गोपाल प्रभु यहाँ पे। क्लास का रिकॉर्डिंग दे देना अगर किसी ने किया ब्रह्मचारी क्लास, क्योंकि इसमें बहुत सारे भक्तों ने बहुत अच्छे
सो डिवोटीज़ को एक्चुअली पता ही नहीं था बहुत लोगों को पर तो प्रभु जी अभी हमको पुणे को उनका संग मिला, पता चला उनके बारे में और अच्छे से। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी कृपा करते रहिए हमारे ऊपर, है ना। हम लोग बहुत ही थैंकफुल हैं कि हम छोटे से मन से भी छोटे हैं और नंबर से भी छोटे हैं हमारे लिए आपने निकाला समय। लेट अस थैंक प्रभु जी by one time loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Request Madhav Charan to thank Prabhu ji with some token of our appreciation and love. Hare Bol. फुल यूटिलिटी में